کراچی میں مانسون کی پہلی بارش، وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ برسات نے شہر قائد کا حلیہ بگاڑ دیا۔ نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، گلیاں تالاب، سڑکیں جھیل اور انڈر پاسز پانی سے بھر گئے۔ نالوں میں پڑے کچرے کے باعث پانی گھروں میں داخل ہو گیا۔ شاہراہوں پر گھٹنوں گھٹنوں پانی جمع ہو گیا۔ ٹرانسپورٹ کا نظام درہم بھرم، کرنٹ لگنے اور دیگر حادثات میں 10 افراد جان سے چلے گئے۔ کراچی میں موسلا دھار بارش سے نظام زندگی متاثر، ٹرانسپورٹ نظام بہنے لگا۔ کئی شاہراہوں پر ٹریفک جام، منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہوا۔ کئی گاڑیاں بند، لوگ دھکے لگاتے رہے، فضائی سروس بھی متاثر۔ کئی پروازیں منسوخ، متعدد جہازوں کے رخ موڑ دیے گئے۔ دن بھر ہلکی بارش تو ٹریلر تھا، پکچر ابھی باقی ہے۔ رات گئے، طوفانی بارش کا امکان، برسات منگل تک جاری رہے گی۔ محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کر دی، صورتحال کے پیش نظر سندھ بھر کے تعلیمی ادارے بند رہیں گے۔ سائیں سرکار کی کارکردگی بارش کے پانی میں بہنے لگی۔ کورنگی میں 35، لانڈی میں 36، نارتھ ناظم آباد میں 43 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ پیشگی اطلاع کے باوجود انتظامیہ نے کوئی انتظامات نہ کیے۔ کراچی کل بھی لاوارث تھا، آج بھی لاوارث ہے، عوام بھڑک اٹھے۔ اس شہر کا تو برا ہی حال ہے، یہاں نہ ادھر کے روڈ بھی ٹوٹے ہوئے ہیں اور کچرا اتنا ہے کہ آنے جانے والے کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ہمارے کراچی کو صحیح کیا جائے بھائی۔ جہاں جاؤ ہر گلی میں گٹر کا پانی، یہاں کی گورنمنٹ کو کر ہی نہیں رہی۔ دن بھر کی بارش میں شہر ڈوبا تو شام کو عوامی نمائندے بیدار ہو گئے۔ شہر کا نقشہ خراب ہونے کے بعد شہر کے دورے کا خیال آ گیا۔ گورنر سندھ، میئر کراچی اور وزیر بلدیات مختلف علاقوں میں نکل پڑے، نکاسی آب کے انتظامات کا جائزہ لیا، مطمئن دکھائی دیے۔ پہلی بوند کے ساتھ ہی کراچی کی بجلی اڑن چھو، شہریوں کو کے الیکٹرک نے دن میں تارے دکھا دیے۔ کئی مقامات پر سینکڑوں فیڈر سٹرپ کر گئے، صبح سے بجلی غائب۔ انصاف کے سب سے بڑے ادارے سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں بھی بتی گل۔ صورتحال پر کے الیکٹرک حکام کی طلبی ہو گئی، نیب کا دفتر بھی بجلی سے محروم رہا۔ کراچی میں بارش سے مویشیوں کا برا حال، مویشی منڈی میں پانی اور کیچڑ، کوئی انتظام نہ ہونے سے قربانی کے جانوروں کے بیمار ہونے کا خدشہ، بیوپاری پریشان ہو گئے۔ برسوں بعد برسات، قحط زدہ علاقے میں چھم چھم بارش۔ تھرواسی خوشی سے نہال، مٹھی، اسلام کوٹ، ننگر پارکر اور دیگر علاقوں میں جل تھل ایک ہو گیا۔ بچے ریت کے گھروندے بنانے لگے، لوگوں نے مویشیوں کے لیے بھی پانی جمع کر لیا۔ سیاح گڈھی بھٹ جا پہنچے۔ اندرون سندھی بادل پھٹ پڑے، حیدرآباد میں رات سے بارش، پانی گھروں میں داخل ہو گیا، بجلی معطل، شہر بھر کے سیوریج پمپنگ اسٹیشن بند، ٹنڈو محمد خان میں کاروباری مراکز ڈوب گئے، بدین کے نشیبی علاقے زیر آب، لوگ اپنی مدد آپ کے تحت صفائی ستھرائی میں لگ گئے، گلارچی میں نکاسی آب کا نظام بیٹھ گیا۔ مانسون سے پانی کی موومنٹ تیز ہو گئی، مختلف شہروں میں ندی نالے بھرنے لگے، دریاؤں میں طغیانی، پانی کی سطح بلند، نچلے اور درمیانے درجے کا سیلاب۔ چترال میں سیلابی ریلے کی تباہی، سڑک، رابطہ پل اور آبپاشی کے 5 ہیڈ ورکس بہہ گئے، مین پائپ لائن تباہ، گاؤں غورو کا رابطہ پل بھی پانی کی نظر ہو گیا۔ وزیراعظم عمران خان سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ملاقات، قومی سلامتی کی صورتحال پر غور کیا گیا، ملاقات میں ڈی جی ISI بھی موجود تھے۔ پاکستان کے دفاع پر قوم میں کوئی اختلاف نہیں، نیشنل ایکشن پلان تمام سیاسی جماعتوں نے مل کر بنایا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا قومی اسمبلی میں خطاب، کہا ہمارا امن و استحکام افغانستان سے جڑا ہے، امریکہ کو بھی احساس ہو گیا افغانستان کا فوجی حل ممکن نہیں۔ وزیر اعظم کی کوششوں سے آج طالبان بھی مذاکرات کی میز پر آ چکے ہیں۔ 24,000 ارب روپے کا 10 سالوں میں اس ملک کو مقروض کیا ہے اور وہ جواب نہیں دے رہے۔ ان کے لیے اگر جیل میں ہے تو ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں،
बेचारा आम आदमी 70% पाकिस्तानियों के घरों में एयर कंडीशन नहीं है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला कानून की बालादस्ती ना होना है। जो जितना बड़ा मुजरिम है जेल में उतनी ही बड़ी मुराद लेता है। करप्शन करने वालों के लिए जेल में एयर कंडीशनर लगे हुए हैं। वजीर आजम का अक़लियतों के दिन पर खिताब, कहा अपने दौर में कर्जे लेने वालों का तमाशा देख ले। मुल्क को 24,000 अरब रुपए का मकरूज करने वाले जवाब देने को तैयार नहीं। पूछो तो कहते हैं इंतकामी कार्रवाई हो रही है। इस्लाम के नाम पर दुकानें खोल रखी हैं। खान साहब, मौलाना फजलुर रहमान को हुकूमत मिल गई तो आपका क्या हाल होगा? तौबा तौबा। बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हुकूमत इंतकामी कार्रवाई से गुरेज करे, 18वीं तरमीम पर समझौता नहीं करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान हुकूमती अरकान के रडार पर ताक ताक कर निशाना बनाया। फिरदौस आशिकाबाद पार्टी ने उन्हें किराए पर ले रखा है। ये मदरसे के बच्चों को अपना आलाकार बनाना चाहते हैं। फयाजुल हसन चौहान ने कहा मौलाना उसूल की नहीं वसूल की सियासत करते हैं। बाहर मुल्क में जाके जहाँ बेसबॉल खेली जाती है उनको पता ही नहीं है क्रिकेट बैट क्या है। कि जी हज़ारों करोड़ों खावे तो पकड़े ना शफीक शेख को हमारे साथ, तो डाले जेल में, बताएं कि किधर है हज़ारों करोड़ों। जाली बैंक अकाउंट्स केस, इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने आसिफ जरदारी के रिमांड में 10 रोज की तौसी कर दी। पेशी पर मीडिया से गुफ्तगू में साबिक सदर बोले, हजारों करोड़ खाने का इल्जाम लगाया जा रहा है। हफीज शेख भी हमारे साथ थे, इन्हें भी पकड़ा जाए। आसिफ जरदारी ने मिलियन मार्च में शिरकत की भी तस्दीक कर दी। मंशियात केस में राना सना की पेशी, समाअत 9 अगस्त तक मुलतवी। लीगी रहनुमा के मेडिकल से मुतालिक 31 जुलाई को जवाब तलब कर लिया। शहबाज शरीफ ने राना सना से मुलाकात की। MAO कॉलेज पर सिक्योरिटी हुकाम ने गाड़ी रोक ली। अपोजिशन लीडर पैदल अदालत पहुंचे। कौमी असम्बली में खिताब के दौरान इरफान सिद्दीकी की गिरफ्तारी की मजम्मत भी की। मेरी तमाम अरकान से गुजारिश है। कौमी असेंबली में PTI और पीपल्स पार्टी अरकान आमने सामने आ गए। कादिर पटेल के माइक संभालते ही खिलाड़ी आपे से बाहर हो गए। जियालो ने भी पोजीशन संभाल ली। सूरत हाल कंट्रोल से बाहर होने लगी तो डेप्यूटी स्पीकर ने इजलास मुलतवी करने में ही आफियत जानी। कंट्रोल लाइन पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी, भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर की दफ्तर खारिजा तलबी। मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर शदीद एहतजाज किया। भारतीय फौज ने गुज़श्ता रोज किलर निज़ापीर सेक्टर पर फायरिंग की थी। एक खातून शहीद और 4 अफराद जख्मी हुए थे। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा का फौरी और सस्ते इंसाफ की तकरीब से खिताब, कहा जज का काम दलाइल सुनकर फैसला करना है, केस मुलतवी करना नहीं। इस्लामाबाद में सिर्फ 41 क्रिमिनल्स अपीलें ज़ेरे इल्तिवा रह गई हैं। कराची और पेशावर में कोई अपील ज़ेरे इल्तिवा नहीं। चीफ जस्टिस का उम्र कैद की सजा की मुद्दत के तायुन का नोटिस, लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। सजा में दिन रात शुमार किए जाते हैं। बहुत सी गलतियां दुरुस्त करने का वक्त आ गया। अरसे से ऐसे केस का इंतजार था। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, अक्टूबर के पहले हफ्ते में समाअत मुकर्रर करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने बदउनवानी और धोखाधड़ी के मुकदमे में नैब के इख्तियारात का तयन कर दिया। जाली दस्तावेजात पर नैब कार्रवाई का मुकम्मल इख्तियार रखती है। जस्टिस अजमत सईद के रिमार्क्स, कहा जाली दस्तावेजात साबित होने पर 14 साल की सजा हो सकती है। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया, क्या सिर्फ नैब ही वाहिद इदारा रह गया है? ऐसा है तो सारे मुकदमात नैब को दे दें। नैब ने शर्जील मेमन के 2 अरब 30 करोड़ के असासों का सुराग लगा लिया। आमदनी और असासों में तजाद है। साबिक सूबाई वजीर तहकीकाती टीम को मुतमईन न कर सके। नैब ने दूसरे रेफरेंस की भी तैयारी कर ली। आगाज करेंगे और सबसे पहले बात होगी कराची की बारिश की। सुबह से
से जारी बारिश थम चुकी है, लेकिन शहर कायद के बेशतर इलाके अब भी पानी में डूबे हुए हैं। गुलशन हदीद से किमाड़ी, बल्दिया टाउन से बहरिया टाउन तक हर इलाके में पानी खड़ा है। गलियां, सड़कें, हत्ता के पानी घरों में दाखिल हो चुका है। अंडरपासेस स्विमिंग पूल की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। कराची पानी पानी, मुश्किल हो गई जिंदगानी। सुबह बादल बरसे और फिर बरसते ही चले गए। गुलशन हदीद से कीमाड़ी, बल्दिया टाउन से सुरजानी, बादल हर जगह जमकर बरसे। बारिश हो रहा है, मौसम अच्छा है, अल्लाह का शुक्र है, हम छुट्टी भी है। बारिश की वजह से बहुत मजा आ रहा है अभी तो बारिश में ऐसी। और सड़कें झील और गलियां तालाब में तब्दील, अंडर पासेस भी स्विमिंग पूल बन गए। नशेबी इलाकों में पानी घरों में भी दाखिल हो गया। किचन, फर्नीचर सब डूब गया। इस शहर का तो बुरा ही हाल है। यहाँ ना इधर के रोड भी टूटे हुए हैं और कचरा इतना है कि आने जाने वाले को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमारे कराची को सही किया जाए भाई। जहाँ जाओ हर गली में गटर का पानी, यहाँ की गवर्नमेंट को जो है कर ही नहीं रही। करंट और हादसात भी कई कीमती जिंदगियां निकल गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये तो ट्रेलर था, तूफानी फिल्म तो रात में धूम मचाएगी। मॉनसून की ये बारिश बुध की सुबह तक यूं ही शहर की प्यास बुझाएगी। दिन भर क्या सूरत हाल रही है तो आपने जाना। इस वक्त शहर की क्या सूरत हाल है, किन किन इलाकों में पानी मौजूद है, ये हम जानेंगे। आज न्यूज के नुमाइंदे शहरियार साजिद हमारे साथ मौजूद हैं। शहरियार, आगाह कीजिएगा। जी, बारिश की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करता चलो तो इस वक्त जो है वो बारिश थम गई है। इस वक्त बारिश जो है वो नहीं हो रही, लेकिन महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश जो है वो मंगल के रोज तक जो है वो जारी रहेगी। सुबह 5 बजे से लेकर 11 बजे तक जो है वो मूसलाधार बारिश होने का जो है वो इम्कान जाहिर किया गया है। लेकिन जो सुबह सवेरे बारिश हुई थी और अब तक जो वो जारी थी, उसकी वजह से सड़कें जो हैं वो तालाब का मंजर पेश कर रही हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो बरसाती नाले जो हैं वो ब्लॉक हैं कचरा होने की वजह से। मेयर कराची ने, सीएम ने बहुत दावे किए थे और कहा था कि ये तमाम के तमाम जो है वो कचरा हटा दिया जाएगा, बरसाती नाले खोल दिए जाएंगे। मानसून की वार्निंग भी दे दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद बरसाती नाले जो है वो कचरा नहीं हटाया गया, जिसकी वजह से वो ब्लॉक हैं और आज ये मंजर पेश कर रहे हैं तालाब का ये सड़कें। इसके अलावा जो कच्ची आबादी हैं, कच्ची आबादी के आसपास के जो घर हैं, उनके अंदर भी जो है वो पानी जो है वो दाखिल हो चुका है और इस पानी के अंदर सीवरेज का पानी जो है वो भी मिक्स हो चुका है, क्योंकि गटर जो है वो यहाँ पे उबल गए हैं। सीवरेज जो लाइन्स हैं उसमें भी पानी जो है वो बैक मारा है, जिसकी वजह से पानी जो है सड़कों के ऊपर आ गया। इसके अलावा लोड शेडिंग के हवाले से बात की जाए तो कराची के कुछ इलाकों के अंदर जो है बिजली बहाल कर दी गई है, लेकिन कुछ इलाकों के अंदर जो है सुबह 6 बिजली अब तक जो है वो गायब है। इसके अलावा करंट लगने के जो वाकयात हैं उसके अंदर भी अब तक जो है वो 10 से 11 अफराद जो है वो हलाक हो चुके हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शहरियार साजिद आपका हमें इस सिलसिले में अपडेट करने के लिए। कराची में बारिश बरसाने वाला सिस्टम अभी मजीद बारिश बरसाने को तैयार है, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर मेट सरदार सरफराज साहब। सरफराज साहब, ये फरमाएगा कि मजीद कितनी बारिशें मुतवक्के हैं और ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? जो हैवी स्पेल है उसका क्या दौरानिया होगा? जी देखिए, अभी हैवी स्पेल, जो बहुत हैवी स्पेल था वो तो तकरीबन हो चुका है, लेकिन एक आध स्पेल और हम तवक्को कर रहे हैं कि सुबह 4 से 5 बजे के दरमियान कोई शुरू हो और 7-8 बजे तक रहे एक हैवी स्पेल, और उसके बाद रहेगा ये कल शाम तक ये सिलसिला रहेगा एटलीस्ट, लेकिन ज्यादा हैवी नहीं होगी आज की तरह। हैवी स्पेल एक आधी है और उसके बाद मॉडरेट टाइप रेन होती रहेगी दिन में वक्फे वक्फे से। जी अच्छा सरदार साहब, आज दिन भर हमने ये देखा था कि मुसलसल बारिश हुई है, तो अब जो दिन आ रहा है वहां पे भी मुसलसल बारिश हमें देखने को मिलेगी या वक्फे वक्फे से बारिश होगी? नहीं, वक्फे वक्फे से होनी चाहिए, मुसलसल नहीं होगी, इसलिए कि सिस्टम जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, इस वजह से ये पूरा दिन ही तकरीबन चलती रही, तो उसकी उतनी स्ट्रेंथ नहीं रही अब, तो इसलिए कल वक्फे वक्फे से होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब। शहर में बारिश होते ही सड़कें पानी में गायब हो गई, गाड़ियां खराब हो गई, शहरी घंटों ट्रैफिक जैम में फंसे रहे। सिंध हुकूमत ने आज तमाम तालीमी इदारों में छुट्टी का ऐलान कर दिया।
سڑکیں، گلیاں، محلے، بازار، نظر جہاں بھی دوڑائیں پانی ہی پانی نظر آئے۔ لگاتار بارش نے جل تھل ایک کر دیا۔ سڑکوں پر پانی جمع ہوا تو شہری پھنس گئے۔ کار، موٹر سائیکل، رکشہ ہو یا ٹیکسی، سب کے انجن کام کرنا چھوڑ گئے۔ کوئی بارش میں دھکا لگاتا رہا تو کوئی گاڑی وہیں چھوڑ کر چلتا بنا۔ اہلکار بھی رضاکارانہ طور پر اترے، بند ہونے والی گاڑیوں کو دھکے لگاتے رہے۔ سندھ بھر کے تعلیمی اداروں میں بھی چھٹی دے دی گئی۔ طلباء نے بھی بارش کو غنیمت جانا۔ مسلسل بارش نے انتظامیہ کی دوڑیں لگوا رکھی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر صفائی ستھرائی کا کام بر وقت ہو جاتا تو ابھی شہر کی یہ حالت نہ ہوتی۔ بارش سے شہر میں کیا ہو سکتا ہے، حکومت کو صورتحال کا پہلے ہی علم تھا۔ رین الرٹ بھی جاری کر دیا گیا تھا، لیکن حکام پھر بھی کچھ نہ کر پائے۔ پیش کی الرٹ، میڈیا کی خبر سب بیکار۔ کراچی کی بارش انتظامیہ کے دعووں کو بہا لے گئی۔ 7 برساتی نالوں میں سے کوئی ایک بھی صاف نہ ہوا۔ کچرا پھنسا تو گٹر بھی ابل پڑے۔ سڑکوں پر مشینری تو لگی لیکن وہ بھی کسی کام نہ آئی۔ شہر پانی میں ڈوبا تو بڑی گاڑیوں میں سوار عوامی نمائندے باہر نکلے۔ وزیر بلدیات سعید غنی نے ایکشن دکھایا، احکامات جاری کیے۔ پانی ادھر جا رہا ہے، اس کا جب فلو بڑھے گا نا تو وہ بھی ادھر بڑھے گا۔ گورنر سندھ میئر کراچی کے ہمراہ سڑکوں پر نظر آئے۔ دوروں کا بظاہر کوئی فائدہ تو نہ ہوا، لیکن فوٹو سیشن خوب ہوا۔ اور پھر وہی ہوا جو کے الیکٹرک ہمیشہ کرتا آیا ہے۔ اس سے پہلے کہ بارش عوام کے چہرے پر رونق لاتی، کے الیکٹرک کی روایتی ہٹ دھرمی نے عوام کی ساری خوشی غصے میں بدل دی۔ بارش آئی، شہریوں کے چہرے پر خوشیاں لائی، لیکن کے الیکٹرک کو یہ بالکل بھی نہ بھائی۔ پہلی بوند کے ساتھ ہی بجلی بھاگ گئی، نظام بیٹھ گیا، فیڈرز ٹرپ ہو گئے۔ انتظامی غفلت کے باعث پول میں آگ بھڑک اٹھی۔ انصاف کی سب سے بڑی عمارت سپریم کورٹ بھی اندھیرے میں ڈوب گئی۔ عدالت نے کے الیکٹرک حکام کو طلب کر کے جواب طلبی بھی کی۔ شہریوں نے کئی بار ہیلپ لائن ملائی، لیکن وہاں سے بھی کوئی مدد نہ آئی۔ صبح سے شام اور شام سے رات ہو گئی، لیکن کراچی والوں کو بجلی نہ مل سکی۔ اس وقت شہر کی کیا صورتحال ہے، یہ ہم جانیں گے۔ آج نیوز کے نمائندے خاور حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خاور، بتائیے کہ اب تک کتنے فیصد ایسے علاقے ہیں جہاں پر بجلی بحال ہو چکی ہے؟ جی، رات گئے شروع ہونے والا بارش کا یہ سلسلہ اب بھی مسلسل جاری ہے، جس کے باعث اب معمولات زندگی متاثر ہونے لگے ہیں۔ میں اس وقت گلستان جوہر میں موجود ہوں اور آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سڑکیں ہیں جو اب تالاب کا منظر پیش کر رہی ہیں، جس کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر ہو رہی ہے۔ لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ خاص طور پر اگر بات کی جائے موٹر سائیکل سواروں کی تو انہیں بڑا مشکل ہو جاتا ہے، جہاں پانی زیادہ کھڑا ہوتا ہے نشیبی علاقوں میں، وہاں سے گزرنا، کیونکہ اس کے باعث جو ہے وہ موٹر سائیکل کے پلگز میں پانی چلا جاتا ہے اور موٹر سائیکل بند ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے انہیں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آج صبح سے لے کر اب تک ایکسیڈنٹس اور موٹر سائیکل پھسلن کے کئی واقعات پیش آئے، جن کے باعث زخمیوں کو جو ہے وہ اسپتال منتقل کیا گیا۔ کرنٹ لگنے کے 9 واقعات پیش آئے، جن میں 9 افراد جاں بحق ہو گئے، جبکہ ایک قربانی کا جانور بھی جو ہے وہ کرنٹ لگنے سے ہلاک ہوا ہے۔ اسی طرح سے مختلف علاقوں میں ایکسیڈنٹس رپورٹ ہوئے ہیں گاڑیوں کے۔ اب اگر بات کی جائے نکاسی آپ کی، تو محکمہ بلدیات کا عملہ جو ہے وہ مختلف علاقوں میں پانی نکالنے کے لیے سرگرم ہے۔ اسی طرح سے انڈر پاسز میں پانی جمع ہے، جسے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ممکن نہیں ہے کہ آج رات تک یہ نکالا جا سکے، کیونکہ بارش کا سلسلہ جو ہے وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ مسلسل کل رات سے شروع ہونے والی بارش جو ہے وہ اب بھی کراچی میں مسلسل ہو رہی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ خبر آپ کا۔ اور اس وقت کے الیکٹرک کے ترجمان عادل مرتضی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو ان سے جان لیتے ہیں۔ عادل صاحب، یہ بتائیے گا اب تک کتنے فیصد کراچی کے ایسے علاقے ہیں جہاں پر بجلی آپ لوگوں نے بحال کر دی ہے؟ کیونکہ اطلاعات آ رہی ہیں اب بھی 50% سے زائد علاقوں میں بجلی نہیں آئی ہے۔
जी बहुत बहुत शुक्रिया आपने कलेक्टर को अप्रोच किया। जैसा कि खबर आपके रिपोर्टर ने अभी बताया कि सड़कें जो हैं वो कराची में तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। मैं आपको बताता चलूं कि कई ऐसे मकामात हैं कि जहां पर अभी भी पानी खड़ा है, कई ऐसी सड़कें हैं, नशीबी इलाके हैं जहां पर जो है ना वो पानी की वजह से हमें बिजली की बहाली में दुश्वारी का सामना है। ताहम हमारी जो फील्ड स्टाफ है वो जल्द से जल्द बिजली की फरहमी के लिए जो है उनकी बहाली के लिए जो है वहाँ पर मौजूद है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि ऐसे इलाकों में जहाँ पर कुंडे हैं या नशेबी इलाके हैं, पानी जमा हो गया है, तो वहाँ पर हम हिफाजती इकदाम के तहत जो है न वो बिजली बंद करते हैं ताकि वहाँ पर लाइव वायर्स के बजाय वहाँ पर बिजली आर्जी तौर पे बंद करके। लेकिन आदिल मुर्तजा साहब, अब भी बहुत से ऐसे इलाके हैं जैसे गुलिस्तान जौहर है, गुलशन इकबाल गार्डन, यहाँ पर सुबह से ही बिजली नहीं है और अभी भी लोग शिकायत कर रहे हैं, तो क्या वजह है कि वहाँ की बिजली क्यों नहीं बहाल की गई है? मैं आपको बता रहा था कि कई ऐसे मकामात हैं जहाँ पर बिजली को जुज़वी तौर पर बहाल की गई है, जहाँ पे बहादराबाद के हैं इलाके हैं, तारिक रोड के इलाके हैं, पंजाब कॉलोनी, नात नाज़माबाद, अख्तर कॉलोनी, गुलशन इकबाल की जुज़वी मकामात हैं, वहाँ पे बिजली बहाल की गई है। कराची के भी कुछ एरिया हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये बता रहा था कि हमारे ओल्ड टाउन जो सुरजानी के इलाके हैं, रिंछोड़ लाइन के एरिया, शीरी जिना कॉलोनी के जो नशेबी इलाके हैं, वहाँ पर आर्जी तौर पर बिजली बंद की गई ताकि वहाँ पर जो ये कुंडे या वहाँ पे कोई ऐसे एरियाज हैं जो कि नीचे हैं, ढलान की सूरत इख्तियार की हुई है, तो वहाँ पर पानी जमा होने की वजह से जो है वहाँ पे आर्जी तौर पे फीडर्स को बंद करके उनको फॉल्ट को दुरुस्त किया जा रहा है। अच्छा आदिल साहब, जैसे कि गुलशन की बात हो रही है, गुलिस्तान जौहर की, PCHS की या दीगर पॉश एरियाज की अगर हम बात कर लेते हैं तो पानी का पहला कतरा पड़ता है, पहली बूंद पड़ती है, बिजली चली जाती है, इसकी वजह क्या है? जी हमारी जो फील्ड स्टाफ है उनको मानसून के हवाले से पहले ही जो है वो हमने अलर्ट रखा था और उसके हवाले से हमारी जो रैपिड रिस्पांस टीम थी वो फील्ड में मौजूद रही हैं। और उसके अलावा आज सारा दिन सुबह से लेकर के अभी भी जो इस वक्त वो शाम दोपहर में, शाम में और उसके अलावा रात में भी जो हमारी फील्ड में मौजूद है, नीपा के करीब आप देख लें कि नागन चौरंगी के करीब जहाँ पर पानी भी खड़ा है, बरसात भी थी, इसके बावजूद जो है वो हमारी टीम जो है वो मौजूद है और वहाँ पे बिजली पे बहाल की गई है। लेकिन आदिल मुर्तजा साहब, ये तो बहुत कम ऐसे इलाके हैं जहाँ पे बिजली बहाल की गई है, बहुत से ऐसे इलाके हैं अभी भी वहाँ पर बिजली नहीं है। आपने कहा कि जहाँ पे कुंडा है या जहाँ पर खतरा है वहाँ पर जो बिजली अभी तक बहाल नहीं की जा सकी है, तो 12 घंटे से जायद का वक्त गुजर गया है। बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर कुंडा सिस्टम नहीं है लेकिन वहाँ पर भी बिजली नहीं है। जैसा कि आपने अभी अपनी रिपोर्ट में भी जिक्र किया कि कई ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे रोड रास्ते में, वहाँ पे हमारी गाड़ियों को, हमारी जो फील्ड स्टाफ होता है मेंटेनेंस का, वहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह गाड़ियों को मूव करने के में जो है वो ट्रैफिक की वजह से या पानी खड़ा होने की वजह से तो हमें जगह या रास्ते का जो दुश्वारी का सामना होता है उसकी वजह से थोड़ा सा जो डिले आता है, उसके लिए हम माजरत खा हैं। लेकिन हमारी टीम्स जो हैं वो बहाली के काम के लिए मुसलसल कोशा हैं। ठीक है, मुसलसल कोशा हैं। आप कह रहे हैं कि आपकी टीम में मुसलसल कोशा है बहाली के कामों में। ये बताइएगा, अब महकमा मौसमियात कह रहा है एक और हैवी स्पेल आने वाला है जो सुबह 5 बजे आएगा और लगभग 11 बजे तक जारी रहेगा, तो क्या आज पूरी रात अब बिजली नहीं आएगी? हमारी टीमें बिल्कुल इसके हवाले से जो है ना वो मुस्तैदी के साथ अवेलेबल हैं। और ये मैं आपको बताता चलूं कि ऐसा नहीं है कि जो बहाली का काम जो है वो रुक जाए। जहाँ कहीं पर भी हमें जो है वो हमारे जो ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर हमने आर्जी तौर पे बंद की गई है बिजली, तो वहाँ पर वो बहाली किया जा रहा है। किस तरीके से आप लोग कर रहे हैं? क्या तार टूटे हुए हैं, क्या हो चुका है, फीडर स्ट्रिप कर गए, क्या हुआ है? मैं आपको बताऊं कि हमने जो पिछले ये आप 8-10 सालों का अगर आप थोड़ा सा देखें कि इसमें हमने काफी अपने फीडर्स जो वो एनहेंस किए। 8-9-10 साल पहले जो नेटवर्क था हमारा तकरीबन कोई 600 से 700 फीडर्स तक मुहित था, लेकिन अभी आपके 1600 से ज्यादा फीडर्स। आदिल मुर्तजा साहब, आपसे ये जानना चाहूंगी, जिस तरह से कि जब से बारिशें हो रही हैं 10 हलाकतें हुई हैं, 10 कीमती जानें जाया हो चुकी हैं, जबकि पहले से प्रेडिक्शन की जा रही थी कि हैवी बारिश होगी, तो के इलेक्ट्रिक ऐसे इंतजाम क्यों नहीं करता कि इतनी जानों का जिया ना हो और इतना नुकसान ना हो? पहले से क्यों प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं? बिल्कुल, हमने इस पर जो हिफाजती इकदाम के हवाले से जो है ना वो अपनी मीडिया पे कैंपेन भी शुरू की और आप मीडिया के तवस्सुल से हम आप लोगों के शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारे मैसेजेस को एयर भी किया, जिसमें ये कि खंभों से और टूटे हुए तारों से जो है वो शहरी जो है वो दूर रहें। और इसके अलावा आपने ये देखा होगा कि बाज़ औक़ात मवेशी जो हैं वो बिजली के या इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स के साथ जो है उनको बांध देते हैं। और एक और भी अहम मैं आपको बता दूं कि हर जो शहर में जो हर पोल है वो कि इलेक्ट्रिक का पोल है, उसमें स्ट्रीट लाइट के पोल्स भी शामिल हैं और जो वायर्स हैं वो केबल नेट के और उसके भी वायर्स होते हैं जिनमें जो है वो
कंडक्टिविटी आ रही होती है, तो वो टूट के भी जब वो किसी भी पोल से, चाहे वो बिजली का पोल हो या स्ट्रीट लाइट पोल हो, उससे जब वो कांटेक्ट में आते हैं तो वहां से भी जो इलेक्ट्रिक्यूशन की जो है ना वो इतलात मिलती हैं। और मवेशियों का आप देखें कि कई ऐसे भी मकामात पर ये तस्वीर हमारे सामने आई हैं मीडिया पे भी, कि जो मवेशियों को वो आपकी जो पोल्स हैं उनके साथ बांधा जाता है, तो इससे जो है वो शहरी इज्तनाब करें और जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं, बिजली की जो घंटी है वहां पर गीले यानी कि ज्यादा फोकस अपनी मदद आप पर रहा जाए। बहुत शुक्रिया आपका हमें इस सिलसिले में अपडेट करने के लिए।